Hello learners, welcome to MDC Learning, subject cost accounting, and our today's topic is process costing. Today we are going to solve the question number 2 based on process costing. Here we are going to learn about the normal loss and something more about the process costing. Let us understand the question first. Product A passes through the three distinct processes, that is A, B and C. Here the particulars after that you have sale price per unit rupees 100. It totally belongs to your normal loss. Then you have actual output in units, which is for process A 19,500, for process B 18,800, for process C it's 2,000. Next one is material consumed 6,000, 4,000 and 2,000 respectively. After that you have direct labor expenses, that is 8,000, 6,000 and 3,000, and last is manufacturing expenses, which is 1,000, 1,000 and 1,500 in all three respective processes. So students, during the month 20,000 units were introduced to process A at cost of 10,000. Prepare respective process account and also calculate the cost per unit for each process. So this is the first raw material which you are going to introduce in first process. अपने process 1 में आप 12,000 का material introduce करोगे सबसे पहले. So this material which you are going to write in your process A account under unit का column, और फिर इसी के ऊपर आपका सारा का सारा procedure होने वाला है. ये 20,000 units के लिए आपको cost आया है 10,000 rupees. Prepare the respective cost process accounts and also calculate the cost per unit for each process. As usual, the first step is to prepare the cost accounts. So I already prepared the cost accounts for you all. Here you have two material introduced. Under unit ka column, we are going to write 20,000 units, which is given in a question below the table. The first information, 20,000 units. And the total amount for this 20,000 units will be 10,000. I'm going to write under amount ka column. It's 10,000. After that you have material consumed. So for material consumed, that is nothing but your direct material, which you pay rupees 1,000. Next you have material consumed, which is 6,000. It's given in your question. After that you have direct labor. Direct is rupees 8,000. It's given in a question. You can see in the table for process 1. These are the expenses which I am writing. After that you have manufacturing expenses, which is 1,000. So here I am writing 1,000. On the credit side, the first step is to calculate the normal loss. So calculate is totally based on the percentage of input material. So total input material is 20,000 in process A, where you will get 2% as a normal loss. So what we have to do is basically calculate the value, calculate the units, you can say. Units of normal loss is 20,000. It's totally multiplied by how many? 2%. It's 2%, which is equal to how many units you can calculate on calculator? It's 400. So under unit column we are writing 400. After that we have to calculate the amount, and for the amount there is one more calculation we have to do. What they have said is sale price per 100 units. 100 यूनिट के लिए सेल प्राइस होती है 5 रुपीज. तो पहले कैलकुलेट कर लो एक यूनिट के लिए कितनी होगी. ठीक है. So cross multiplication, if you can say कि for 100 units if there is 5 rupees, so for 1 unit is how much? So 1 multiplied by 5 divided by 100, you will get 0.05 as your per unit calculation. Once again I am saying, अगर यहाँ पे बोला है सेल प्राइस पर 100 यूनिट 5 रुपया होता है, तो एक यूनिट का कितना होगा? एक यूनिट का कैलकुलेट करने के लिए आपको करना पड़ेगा 5 डिवाइड बाय 5 यूनिट डिवाइड बाय 100
it gives you 0.05. So for 0.05, your calculation will be for 400 units multiply by 0.05, you will get the value as 20 rupees. So under amount ka column, we have to write 20s as a loss. Next, let us close the process A. प्रोसेस ए को क्लोज करना है. अब प्रोसेस ए को क्लोज करने के लिए सबसे पहले आपको टोटल लिखना पड़ेगा. गो टू द टोटल ऑफ डेबिट. जब आप पूरा डेबिट का टोटल करते हो तो आपको अमाउंट के कॉलम में इट्स 10,000 प्लस 6,000 बिकम 16. 10,000 plus 6,000 become 16 plus 8,000, it will get 24 plus 1,000, you will get total 25,000 as a total for process A. So it's 25,000 for process A. Just check for process B. It's once again we are writing 25,000. 25,000. So 400 रुपया नॉर्मल लॉस आने के बाद आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस बी इज 19,500. ठीक है, यहाँ पे ऊपर क्वेश्चन में दिया है. सी हियर एक्चुअल आउटपुट इन यूनिट्स, यानी प्रोसेस ए में मुझे 19,500 यूनिट्स आने चाहिए. 19,500 यूनिट्स मुझे प्रोसेस वन में एज एन आउटपुट आना चाहिए. तो मैं यहाँ पे बाय आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट process, that is you can write here next process B account. ठीक है, आपने next process आपका B account जो है वहां पे लिखा. ठीक है, तो कितना आना चाहिए यूनिट के कॉलम में 19,500. ठीक है, so here I am going to write 19,500. सी अब यूनिट्स के कॉलम के टोटल को देखोगे तो डेबिट साइड पे है 20,000. सेम हमने क्रेडिट साइड पे भी लिखा 20,000. पर ये अमाउंट का कॉलम टैली नहीं हो रहा है. ये अमाउंट का कॉलम टैली नहीं हो रहा है. व्हाट वी ऑब्जर्व दैट यहाँ पे देखो 19,500 प्लस 400, 100 यूनिट्स आपको कम आ रहे हैं. तो जो आपको 100 यूनिट कम आ रहे हैं वो 100 यूनिट्स आपका बैलेंसिंग फिगर है. और उसी बैलेंसिंग फिगर जो 100 यूनिट्स का है आपके पास, क्योंकि वो क्रेडिट साइड पे है तो आप उसको नाम देने वाले हो बाय एबनॉर्मल लॉस. दिस इज नथिंग बट योर एबनॉर्मल लॉस. ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस. नाउ लेट अस सी स्टूडेंट्स, कैलकुलेशन कैसा होता है एबनॉर्मल लॉस का. एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू अब यहाँ पे अपने पास, अगर आपको सिर्फ नेक्स्ट प्रोसेस की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती तो आप क्या करते, टोटल कॉस्ट में से आपको नॉर्मल लॉस की टोटल वैल्यू माइनस कर दोगे एंड उसके बाद जो भी आपके पास बैलेंसिंग फिगर आएगा दैट बैलेंसिंग फिगर बिलोंग्स टू योर आउटपुट ट्रांसफर टू योर नेक्स्ट प्रोसेस बी अकाउंट. बट हियर the question is your units का column is also not get tallied. Unit के column में there is a difference of 100 units. वो 100 units के difference को you can say, you can consider as a normal loss. वो आपका normal loss होगा. Here what we have to do, we have to write one formula to calculate the cost of a normal loss. ठीक है, so abnormal loss, because normal loss का calculation is already given and we already calculated. अब यहाँ पे मुझे अमाउंट के कॉलम में दो वैल्यूज है जो चाहिए. एक मुझे ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस के लिए मुझे वैल्यू चाहिए, एक मुझे एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू चाहिए. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज बेसिकली अप्लाइंग द फॉर्मूला. मेरे दूसरे तीसरे वीडियोज में मैंने आपको, आई थिंक इन द सेकेंड वीडियो आई टोल्ड यू अबाउट द नॉर्मल लॉस. नॉर्मल लॉस क्या होता है, एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, एंड हाउ टू कैलकुलेट the abnormal loss and abnormal gain values. तो सब के बारे में भी मैंने आपको बताया था. See here, to calculation the abnormal loss, the formula will be debit and credit of the amount column is divided by debit minus credit of the quantity column multiplied by abnormal loss quantity. So here you can see the debit का total is 25,000 under the amount का column and credit के column में there is only ₹20 divided by in quantity column. On the debit side you have 20,000 and on the credit side you have
400 यूनिट्स विच इज मल्टीप्लाई बाय दी 100 यूनिट्स। ये आपका 100 यूनिट्स है, ठीक है ना। इसको आप क्या बोलोगे, ये आपका एबनॉर्मल क्वांटिटी है स्टूडेंट्स, ये आपका एबनॉर्मल क्वांटिटी है। ये एबनॉर्मल क्वांटिटी यहाँ पे here it is, ठीक है। सो अगर आप इसको वैल्यूड करोगे 25,000 माइनस 20 किया तो 24,980 आता है, which is divided by 20,000 minus 400 is 19,600 multiply by 100 you will get 127.45 और रुपीज 127, ठीक है। यानी 0.45 है तो आप इसको कोई भी वैल्यू लिख सकते हो, यानी आप 127.45 लिख सकते हो, या फिर उसको राइट ऑफ करके लिखना हुआ तो व्हाट वी आर राइटिंग इज ओनली 127। सो वी आर गेटिंग द वैल्यू फॉर एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस के लिए मुझे वैल्यू मिली है, एबनॉर्मल लॉस के लिए मुझे वैल्यू मिली है। कौन सी वैल्यू मिली है मुझे एबनॉर्मल लॉस के लिए? 127 रुपीज फॉर माई 100 यूनिट्स। तो एबनॉर्मल लॉस के आगे मुझे लिखना है 127, ठीक है। वी आर गेटिंग दिस वैल्यू विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, ठीक है। या यहाँ पे मैंने देखो ब्रैकेट में लिख देना है, दिस इज आई एम गेटिंग फ्रॉम वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है ना। ये मुझे मिला है मेरे वर्किंग नोट नंबर 1 से। क्लियर स्टूडेंट्स? ये मुझे मिला है मेरे वर्किंग नोट नंबर 1 से 127। आफ्टर दैट सिर्फ एक ही चाहिए वैल्यू आपको, सिर्फ ये 19,500 की वैल्यू चाहिए। तो अब क्या कर सकते हो? नाउ यू कैन डू द टोटल। अब आप टोटल वर्क कर सकते हो। आप यहाँ पे टोटल आपके पास 25,000 है, सो टेक द टोटल ऑन कैलकुलेटर। 25,000 माइनस 20 रुपीज माइनस 127 रुपीज, यू विल गेट 24,853 24,853 in your hand, ठीक है, as a balancing figure, as a figure which you are going to transfer next process, that is process B account. Let us move to the process B account, ठीक है। अब प्रोसेस बी में आने के बाद सबसे पहला वाला हमारे पास क्या है? जस्ट चेक। आपके पास सबसे पहले क्या है आपका? टू इनपुट फ्रॉम प्रोसेस ए। प्रोसेस ए से आपको कितना इनपुट आया? तो यूनिट्स में आए हैं 19,500। यू कैन चेक टू द प्रीवियस वाला कॉलम, 19,500 आपके पास आया है। देखो ये वाला, दिस वन विद द वैल्यू ऑफ 24,853। उसकी वैल्यू कितनी निकली है? 24,853। सो हियर वी आर गोइंग टू राइट द वैल्यू 24,853. After that you have material consumed, ठीक है, material consumed which is given in the question, which is 4,000. After that you have this is not material students, it's a printing mistake. This is your direct labor, yeah, direct labor expenditure. Direct labor का expenditure is, it is given in the question, it's 6,000. After that you have manufacturing expenses, which is again 1,000. Then again we are going to calculate the normal loss, students. Normal loss based on the percentage of input. Let us move to the question. Question में जाते हैं और चेक करते हैं कि what is the value for normal loss. So यहाँ पे question में गए तो पता चला कि I want you all to write this question in a notebook so that आपको बार बार ऐसे ड्रैग करके ऊपर नीचे आने की जरूरत नहीं है। नोटबुक में सबसे पहले ये क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन लिख लोगे तो सब कुछ इजी हो जाएगा। परसेंटेज ऑफ normal losses depends upon the percentage of input in the process B. The normal loss is 5% again, which is 5 rupees sale price for per 100 units, ठीक है। तो नीचे आएंगे और नीचे आके हम लोग यहाँ पे नॉर्मल लॉस कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स। नॉर्मल लॉस आपके पास इस बार इनपुट बनेगा 19,500। 19,500 के ऊपर आपको 5% का नॉर्मल, स्टूडेंट्स इट्स इक्वल टू 975 यूनिट्स, ठीक है। तो यूनिट्स के कॉलम में लिख दो 975, ठीक है। अभी इसका अमाउंट कैलकुलेट करना है तो बोला है पर 100 यूनिट्स के लिए 5 रुपीज लगता है, ठीक है। पर 100 यूनिट्स के लिए 5 रुपीज लगता है।
तो एक यूनिट के लिए कितना, तो 0.05 वी ऑलरेडी कैलकुलेटेड. Let us write the value. Value is 0.05 multiplied by 975 units. So take on the calculator. 975 multiplied by 0.05 is gives you 49 rupees exactly. ठीक है. So amount के कॉलम में 49 rupees. तो ये आपके नॉर्मल लॉस का कैलकुलेशन है स्टूडेंट्स, ये आपके नॉर्मल लॉस का कैलकुलेशन है. लेट अस चेक इनटू द क्वेश्चन कि अगले बार कितना आउटपुट जाना चाहिए अगले यूनिट में. ठीक है, प्रोसेस बी से. हाँ, तो प्रोसेस बी से हियर दे हैव रिटर्न 18,800. एक्चुअल आउटपुट इन यूनिट्स विल बी शोन इन द प्रोसेस बी. ठीक है, तो प्रोसेस बी में जाएंगे आप और बाय आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस दैट इज प्रोसेस सी अकाउंट में जाने के लिए आपके पास कितने यूनिट्स होने चाहिए, 18,800 units. So here you are writing 18,800 units. Now let us do the total. अभी अपन टोटल करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले आप यूनिट्स का टोटल करिए. यूनिट्स का टोटल करोगे तो 18,800 प्लस 975 एंड ईयर 19,500. दोनों को कंपेयर करो. देखो ये वाला साइड है ना ज्यादा है, क्रेडिट वाला साइड ज्यादा है. क्रेडिट वाला साइड इज 19,775. ठीक है, और डेबिट वाला साइड इज 19,500. तो हमारा पहले से अकाउंटिंग ना जो ज्यादा होता है हम उसको दोनों साइड पे लिखते हैं. जो ज्यादा होता है हम उसको दोनों साइड पे लिखते हैं. तो अगेन वी आर राइटिंग ऑन द डेबिट साइड 19,775 एंड द बैलेंस इज कम्स ऑन द डेबिट साइड दिस टाइम. तो हम क्या करने वाले हैं, हम लोग बैलेंस यहाँ पे लिखेंगे एज 275. 19,975 minus 19,500 करोगे तो you will get a balance of rupees of 275 units. Not the rupees, it's 275 units. और हम इसको नाम देने वाले हैं टू abnormal, because normally ये होता नहीं है ना, तो इसका नाम है abnormal. So this is your abnormal gain. ये जो आपके पास एक्स्ट्रा यूनिट आया है, इस एक्स्ट्रा यूनिट का नाम है abnormal gain. Now, अब ये एबनॉर्मल गेन पता करना पड़ेगा कि इसकी वैल्यू कितनी होगी. ठीक है, इसका अपने को सीपीयू पता करना पड़ेगा. सीपीयू क्या, कॉस्ट पर यूनिट. ठीक है, सो दैट आप क्या कर पाओगे, क्योंकि आपके पास एक अमाउंट डेबिट साइड का मिसिंग है, एक अमाउंट आपके क्रेडिट साइड का मिसिंग है. एक अमाउंट आपको डेबिट में मिसिंग है, एक अमाउंट आपको क्रेडिट में मिसिंग है. तो डेबिट में मिसिंग है, क्रेडिट में मिसिंग है, कॉस्ट पर यूनिट पता करना पड़ेगा इसका. ठीक है, तो यहाँ पे कॉस्ट C.P.U ये मैंने लिख रखा है यहाँ पे. दिस इज नथिंग बट द कॉस्ट पर यूनिट. कॉस्ट पर यूनिट इज टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय यूनिट्स करोगे तो कॉस्ट पर यूनिट आ जाता है. यहाँ ऊपर भी मैंने आपको कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना सिखाया. कॉस्ट पर यूनिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये टोटल वैल्यू डिवाइड बाय यूनिट्स करोगे तो कॉस्ट पर यूनिट आता है. हियर आल्सो लेट अस सी वन एग्जांपल ऑफ कॉस्ट पर यूनिट. Cost per unit is equal to total amount 24,853 is equal to, यहाँ पे लिखो 24,853 divide by 19,500. So you will get 24,853 divided by 19,500 you will get 1.27 as a cost per unit. ठीक है, सेम आपको यहाँ पर भी आएगा. सेम अगर आप देखोगे ना तो सेम वैल्यू आपको यहाँ पर भी आएगी. यानी व्हेन यू आर गोइंग टू डू दी एबनॉर्मल लॉस का पर यूनिट कैलकुलेशन, एबनॉर्मल लॉस के लिए जब आप पर यूनिट कैलकुलेशन करोगे तो भी आपको सेम चीज आएगी. एबनॉर्मल लॉस का 127 डिवाइड बाय 100 यूनिट्स यू विल गेट 1.27 एज योर कॉस्ट पर यूनिट. सो हियर आल्सो इन प्रोसेस बी you have to calculate the cost for your abnormal gain as well as the cost for your output which you are going to transfer to the next process. Again we are writing the formula. The formula said that the abnormal gain amount is equal to, like abnormal gain का आपको amount चाहिए तो that amount is equal to debit minus credit of amount column divide by quantity, that is debit minus credit का quantity column multiply by abnormal gain.
इसको मल्टीप्लाई करोगे एबनॉर्मल गेन से, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है एबनॉर्मल गेन की क्वांटिटी से। सो हियर डेबिट साइड का टोटल क्वांटिटी का कॉलम विल बी 19500 minus 975 and this is your amount का column, that is 35853 minus 49 multiply by 275 which is the abnormal gain का quantity. Total you will get 35804 divided by 18525 into 275. Calculator पे इसको solve करोगे you will get 531.5 और उसको round off करके लिखने के लिए क्योंकि point के बाद 5 है तो we are writing total 532 as a value. Total value आपको 532 लिखनी है. So here in the amount का column we are going to write 532 for your abnormal gain value, जिसका per unit अगर आप calculate करोगे तो 532 divide by 275. Calculator पे ले लो 532 divide by 275 units. You will get 1.93 as a cost per unit. So is equal to 1.93 as your cost per unit. Here also you have to put the same cost per unit. Same cost per unit आपको यहाँ पर भी लगाना है और आपकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है, ठीक है, यानी यहाँ पे लिखोगे आप cost per unit. Directly you can write is equal to 1.93, ठीक है, 1.93 और ये ब्रैकेट क्लोज. So by multiplying this 18,800 multiplied by 1.93, you will get 3632. Okay, 18,800 multiplied by 1.93, you will get 36284, ठीक है, 36284. और अगर आपने टोटल के कॉलम को किया है यहाँ पे, that is 24,853 plus 4,000 plus 6,000 plus 1,000 plus 532, so you will get total as a 36,385. So here 36,385. Here also you have to write 36,385. The balancing figure will be 36,336 because 36,385 minus 49. 36,385 minus 49 तो आपको मिलेगा 36,336. 36,336, ठीक है, 36,336. So 36,336 divided by 18,800, so you will get 1.932 as the cost per unit. So that you can see with calculation, बहुत सारा calculator भर के decimal point में आंसर आता है, so you cannot write that decimal point like that, ठीक है, you have to calculate the total values and then you have to write the figures. So that is the calculation, that is the working note for process B. Students, kindly get more focused working notes so that the understanding will be better for you. Now your whole question will be depends upon the three processes. ये आपका तीसरा और आखिरी प्रोसेस है. तीसरे और आखिरी प्रोसेस में आपको सबसे पहले क्या लिखना है, टू इनपुट फ्रॉम प्रोसेस बी. प्रोसेस बी से आपको कितना आया, 18,800 आया आपको प्रोसेस बी से. सो हियर यू आर राइटिंग 18,800. फॉर द 18,800 द अमाउंट विल बी 36,336. जस्ट नाउ वी कैलकुलेटेड 36,336. आफ्टर दैट यू हैव डायरेक्ट मटेरियल. Material will be given in the question as 2,000. After that you have direct labor, ठीक है, again there is a printing mistake. This is your direct labor. Direct labor will be amounted to rupees 3,000. So here we are writing 3,000. After that we have manufacturing expenses, which is this time 1,500. Now students, let us calculate the normal loss. In the question you can see the normal loss is 10% on the total input. So this time the input is 18,800 units multiplied by 10%. Okay, so is equal to, it's
1880 will be your normal loss units. So here you are writing 1880. For the amount, the value is given, that is ₹2 for per 100 units. ठीक है, 100 यूनिट्स के लिए आप ₹2 देते हो. ठीक है, what they have written in a question, let us see. In the question they have written ₹20, not 2, it's ₹20 for per 100 units. 100 यूनिट के लिए ₹20 खर्च करते हो. ठीक है, तो एक यूनिट के लिए कितना करोगे? So this time what we have to do is 20 divided by 100. So this time you will get 0.2. So what we are writing is 1880 multiplied by 0.2. Okay, is equal to, you will get 376 as a abnormal loss. Next is output transfer to. अब यहाँ पे क्या लिखना है आपको? अब यहाँ पे आपको लिखना है आउटपुट ट्रांसफर टू फिनिश्ड गुड्स अकाउंट. ये आपके पास फाइनली आपका गुड्स प्रोसेस्ड हो गया, 3 प्रोसेसेस से घूम लिया, अभी वो फिनिश गुड्स बन गया है. तो इसको अभी सीधा अपन क्या करेंगे, फिनिश गुड्स अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे. बट क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे फिनिश गुड्स ट्रांसफर में कितने की वैल्यू आनी चाहिए, लाइक कितना यूनिट्स आप फिनिश गुड्स में ट्रांसफर करोगे. ठीक है, वो फिर से आपको क्वेश्चन में जाना है, चेक करना है कि ना कितना यूनिट्स हम ट्रांसफर कर रहे हैं. दिस टाइम वी आर ट्रांसफरिंग इनटू द फिनिश प्रोसेस ओनली 2000 यूनिट्स. ठीक है, 2000 यूनिट्स ही आपको डालने हैं फिनिश प्रोडक्ट में. सो आपके पास फिनिश गुड्स के कॉलम में आपको वैल्यू आ जाएगी, अमाउंट के कॉलम में, सॉरी यूनिट्स के कॉलम, it's only 2000. Clear? So let us close the quantity का column. You can see quantity के column में there is on the debit side 18,800 and on the credit side आप loss को मिला लो और finished goods को मिला लो. ठीक है, so सिर्फ 3880 units होता है. बचा हुआ कहाँ गया भाई? तो बचा हुआ जो है वो है आपका एबनॉर्मल. क्या डेबिट में होता तो गेन होता, क्योंकि ये क्रेडिट में है तो आप इसको फिर से लिखोगे बाय एबनॉर्मल लॉस. कितने यूनिट्स का एबनॉर्मल लॉस है वो चेक करना पड़ेगा. ठीक है, कितने यूनिट्स का एबनॉर्मल लॉस है? एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू इज, सॉरी यू कैन से एबनॉर्मल लॉस का क्वांटिटी इज 18,800 माइनस दिस 18,800 minus 1880 माइनस कितना आपको आया आउटपुट 2000. सो टोटल 14,920 units is calculated for your which you are calculating with the help of formula. Again we have to put the same formula for the abnormal loss, which is debit minus credit for the amount divided by debit minus credit to the quantity multiplied by abnormal loss quantity. So here we are writing the debit ka column for the amount 42,836, which I already took the total of 36,336 plus 2000 plus 3000 plus 1500. Total is 42,836. 42,836. After that क्रेडिट साइड पे अपने पास सिर्फ नॉर्मल लॉस का वैल्यू था which is 376. आफ्टर दैट डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी, द डेबिट का क्वांटिटी इज 18,800 एंड क्रेडिट साइड पे देयर इज वन क्वांटिटी ऑफ नॉर्मल लॉस कैलकुलेशन which is 8,880 which is multiplied by 14,920. तो आपको वैल्यू आ जाएगी 37,441. दिस 37,441 belongs to your abnormal loss because we are calculating the abnormal loss. ठीक है, so ये आपके पास आ गया 37,440 as your abnormal loss value. ये आपके abnormal loss की वैल्यू आ गई. यहाँ पे आप फिनिश स्टॉक जो आपको बैलेंस बच गया वो आपका फिनिश स्टॉक. ठीक है, जो आपके पास बैलेंस बच गया, जैसे क्वांटिटी के कॉलम में यू हैव द बैलेंस ऑफ 2000 एंड यहाँ पे अमाउंट्स के कॉलम में यू हैव द बैलेंस ऑफ 5019 एज योर बैलेंसिंग फिगर.
यहाँ पे भी आप सेम टोटल लिखोगे 18,800 विच इज दी हैवियर टोटल फॉर द डेबिट साइड। सेम आपको डेबिट साइड पे अमाउंट का कॉलम भी हैवी है,